Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will cover section 272 to section 283 of Indian Penal Code, which dealt with the concept of evidence in inquiries and trial. तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 272 से लेकर सेक्शन 283 जो डील करता है कि किसी इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंसेस किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Evidence in inquiries and trials, section 272 to 283. Section 272 deals with language of courts. So, first part of this particular chapter deals with mode of taking and recording evidence. So, section 272 deals with language of courts. So, the state government may determine what shall be for the purpose of this code, the language of each court within the state other than the High Court. So the state government is having a power to decide the language of the court for the purpose of this particular court. So other than High Court, तो कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी ये डिसाइड करने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब हाई कोर्ट के अलावा जितने कोर्ट्स है स्टेट में, उन कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होगी ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिसाइड एज टू व्हाट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कौन डिसाइड कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सेक्शन 273, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। So section 273 deals with, except as otherwise expressly provided, all evidence in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of accused person. So whatever the evidence which is taken before the court of law, that must be taken in the presence of द अक्यूज्ड पर्सन। तो जब कभी भी कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, जितने भी एविडेंस होंगे कोर्ट में, वो सब एविडेंस अक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिए जाएंगे। विटनेस के एग्जामिनेशन वगैरह सब अक्यूज्ड के प्रेजेंस में होंगे। और व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विथ इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लेडर, और अगर फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनल अटेंडेंस को अगर कोर्ट ने छूट दी हुई है तो अक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंस में सारे एविडेंस लिए जाएंगे। Then, provided that where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused. Suppose whenever the evidence of any woman whose age is below 18 years and who is a victim of rape or any other sexual offense, if the evidence of that particular victim is to be recorded, the court may take appropriate measure to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross examination of the accused. तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी किसी वुमन का एविडेंस रिकॉर्ड किया जाना है, जो वुमन जिसकी एज 18 साल से कम है और जो रेप की विक्टिम है या कोई और सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम है, जब कभी भी उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा तो कोर्ट ये ध्यान में रखेगा कि उसका सामना अक्यूज से ना हो जब उसका एविडेंस लिया जा रहा है, जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अक्यूज से उसका सामना हो, ये ध्यान रखेगा कोर्ट। देन explanation is there in this section. Accused includes a person in relation to whom any proceeding under chapter 8 has been commenced under this code. चैप्टर 8 में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी पर्सन के अगेंस्ट में तो वो भी अक्यूज्ड के डेफिनेशन में ही आएगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 273 पर, under which section of criminal procedure code 1973 provision regarding evidence to be taken in presence of accused is mentioned.
So section 272, 273, 282, 279. So the correct option is 273 कि सब evidence accused के presence में होंगे, ये section 273 में provide किया हुआ है. Now section 274 we will discuss record in summons cases and inquiries. So in all summons cases tried before a magistrate, in all inquiries under section 145 to 148, and in all proceeding under section 446 otherwise than in the course of trial. तो सेक्शन 145 से लेकर 148 जो सीआरपीसी का है, अगर इसमें कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई समन्स केस चल रहा है या सेक्शन 446 में कोई ट्रायल चल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? द मैजिस्ट्रेट शैल एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. सो एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड, तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कंडक्ट करेगा तो मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. तो जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा विटनेस, तो जो भी एग्जामिनेशन होगा उसका मेमोरेंडम या उसका सब्सटेंस कोर्ट के लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेगा कोर्ट. तो हम देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र है फॉर एग्जांपल, तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट मराठी है. तो ऐसा हर स्टेट की लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा. Provided that if the magistrate is unable to make such memorandum himself, he shall, after recording the reason of his inability, cause such memorandum to be made in writing or from his dictation in an open court. अगर मैजिस्ट्रेट खुद अगर वो कोर्ट के लैंग्वेज में वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, तो उस सिचुएशन में उसकी इनएबिलिटी क्यों है ये रीजन रिकॉर्ड कर कर ओपन कोर्ट में वो क्या करेगा, उसके डिक्टेशन से वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड किया जाएगा. देन सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. तो मैजिस्ट्रेट उस मेमोरेंडम पर जो रिकॉर्ड किया हुआ है, एविडेंस रिकॉर्ड किया हुआ है कोर्ट के लैंग्वेज में, उस पर मैजिस्ट्रेट साइन करेगा और वो कोर्ट का रिकॉर्ड कहलाएगा. सेक्शन 275 डील्स विद रिकॉर्ड इन वारंट केस. वारंट केस में रिकॉर्ड क्या रहेगा? इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड बी टेकन डाउन इन राइटिंग either by the magistrate himself or by his dictation in open court. जब कभी भी वारंट केस में किसी एविडेंस अगर विटनेस का एविडेंस लिया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, तो वो मैजिस्ट्रेट इट बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय द मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट उनका जो एविडेंस हुआ है, जो एग्जामिनेशन हुआ है विटनेस का, वो मैजिस्ट्रेट खुद लिखेगा या ओपन कोर्ट में वो डिक्टेट करेगा किसी और पर्सन को एविडेंस. देन वेयर ही इज अनेबल टू डू सो ओइंग टू अ फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी अंडर हिज डायरेक्शन and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf. अगर मैजिस्ट्रेट खुद अगर फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल इनकैपेसिटी है उसकी कि जिसके वजह से वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड नहीं कर सक रहा, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सक रहा, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कोई पर्सन को उसके तरफ से अपॉइंट करेगा. वो उसके डिक्टेशन में, उसके सुपरिटेंडेंस में कोई और ऑफिसर ये रिकॉर्ड करेगा, वो कोर्ट के लैंग्वेज में वो पर्टिकुलर चीजें वो रिकॉर्ड करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा. प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस. फॉर एग्जांपल अगर मैजिस्ट्रेट इनकैपेबल है, वो खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, तो वो किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस. तो उस सिचुएशन में कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट किया मैजिस्ट्रेट ने एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है वो पर्सन, वो ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड होगा. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस. जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंस में वो रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस, और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड होगा. देन वेयर the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reason referred to in subsection 1. So where the magistrate causes the evidence to be taken down,
अगर मैजिस्ट्रेट where the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reason referred to in subsection 1. कि अगर कोई evidence मैजिस्ट्रेट ने लेना है, अगर मैजिस्ट्रेट वो evidence नहीं ले सकता है ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटी, तो मैजिस्ट्रेट वैसा सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करेगा कि ड्यू टू सो एंड सो फिजिकल डिसेबिलिटी आई कुड नॉट रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर एविडेंस। तो इस तरीके का मैजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट वहां पर देगा। Then subsection 3 deals with such evidence shall ordinarily be taken down in the form of a narrative, but the magistrate may in his discretion take down or cause to be take down any part of such evidence in the form of question and answer। तो जनरल रूल ये है कि जब कभी भी कोई एविडेंस लिया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, तो एक नैरेटिव फॉर्म में, एक सीधा सीधा फॉर्म में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, मैजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन में वो एविडेंस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकता है। The evidence so taken down shall be signed by the magistrate and shall form part of the record। जो भी एविडेंस लिया जाएगा वो एविडेंस पे मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा और वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। सेक्शन 276 डील्स विद रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल है, उसका रिकॉर्ड क्या होगा। इन ऑल ट्रायल्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग either by the presiding judge himself or by his dictation in open court। तो जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है तो जो एविडेंस होगा विटनेसेस का, वो एविडेंस खुद मैजिस्ट्रेट लिखेगा उनका एविडेंस, या वो किसी ऑफिसर को ओपन कोर्ट में डिक्टेट करेगा। तो जो भी एविडेंस लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस का, वो मैजिस्ट्रेट खुद लिखेगा या वो ओपन कोर्ट में डिक्टेट करेगा। जब कोर्ट शुरू है तभी वो डिक्टेट किया जाएगा। और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। और अंडर हिज डिक्टेशन एंड सुपरिटेंडेंस, उस मैजिस्ट्रेट के डिक्टेशन में या उसके सुपरिटेंडेंस में, उसके सुपरविजन में कोई भी कोर्ट का ऑफिसर है जो उसके तरफ से अपॉइंट किया गया है, सेशन कोर्ट का जो जज है उसके तरफ से अपॉइंट किया गया है, वो मैजिस्ट्रेट के डिक्टेशन में या मैजिस्ट्रेट के सुपरिटेंडेंस में वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, बट द प्रिसाइडिंग जज मे इन हिज डिस्क्रिशन टेक डाउन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर भी जनरल रूल यही है। ऑर्डिनरीली क्या होगा कि जब कभी भी किसी विटनेस का एविडेंस लिया जाएगा तो वो नैरेटिव फॉर्म में, एक स्टोरी फॉर्म में लिया जाएगा, बट मैजिस्ट्रेट का, प्रिसाइडिंग जज का ये डिस्क्रिएशन है कि वो चाहे तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकता है विटनेस का एग्जामिनेशन। देन द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी एविडेंस लिया जाएगा सेशन कोर्ट के सामने, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जज है वो सिग्नेचर करेगा और वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। सेक्शन 277 डील्स विथ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। सो इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 और 276, तो सेक्शन 275 और 276 में जो एविडेंस लिया जाएगा, if the witness gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language। Suppose if the witness has given evidence in the language of the court, then it shall be taken down in that language। तो क्या होगा कि अगर विटनेस ने कोर्ट के लैंग्वेज में एविडेंस दिया है तो उसी लैंग्वेज में वो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोर्ट की लैंग्वेज है मराठी, तो अगर कोई एविडेंस, कोई विटनेस ने एविडेंस दिया है मराठी में तो उसका एविडेंस मराठी लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड होगा। If he gives evidence in any other language, it may, if practicable, be taken down in that language, and if it is not practicable to do so, a true translation of the evidence in the language of the court shall be prepared as the examination of the witness proceed, signed by the magistrate or presiding judge, and shall form part of the record। Suppose if the witness has given evidence in any other language, so if practicable, it be taken down in that particular language, and if it is not practicable, then true translation should be made in the language of the court, and shall be, and as the examination of a witness proceed, signed by the magistrate or presiding judge, and shall form part of the record। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरे लैंग्वेज में अगर विटनेस एविडेंस देता है तो अगर प्रैक्टिकेबल है तो जो लैंग्वेज में उसने एविडेंस दिया वही लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाए, और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है
तो वो दूसरी लैंग्वेज में जो दिया हुआ है उसको लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में ट्रू ट्रांसलेट किया जाए उसका, और वो ट्रांसलेट को कौन साइन करेगा? मैजिस्ट्रेट साइन करेगा, प्रिसाइडिंग जज साइन करेगा, और वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, कोर्ट के रिकॉर्ड का। फॉर एग्जांपल मराठी है महाराष्ट्र में कोर्ट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर विटनेस तेलुगु में अगर एविडेंस देता है तो क्या कहा जा रहा है? अगर प्रैक्टिकेबल है तो उसका तेलुगु में ही रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो तेलुगु लैंग्वेज का ट्रू ट्रांसलेशन मराठी में किया जाए और वो मराठी में रिकॉर्ड किया जाए, और उस पर प्रिसाइडिंग ऑफ जज की सिग्नेचर होगी और वो कोर्ट का हिस्सा बन जाएगा। वेयर अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अ ट्रू ट्रांसलेशन thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, signed by the magistrate or presiding judge and shall form part of the record। तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्लॉज बी में अगर कोर्ट के लैंग्वेज के अलावा दूसरे लैंग्वेज में अगर एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो उसको कोर्ट के लैंग्वेज में उसका ट्रू ट्रांसलेशन होगा और उसको मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा और वो कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। प्रोवाइड दैट व्हेन अंडर क्लॉज बी एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड अ ट्रांसलेशन thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation। तो अगर एविडेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसका अगर ट्रांसलेशन कोर्ट के लैंग्वेज में अगर दोनों पार्टी ने भी कहा है कि रिक्वायर नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसका ट्रांसलेशन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एविडेंस हो गया है और दोनों पार्टीज कह रहे हैं कि इसके ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उसका ट्रांसलेशन नहीं करेगा। सेक्शन 278 डील्स विथ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। सो एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस taken under section 275 and 276 is completed, it shall be read over to him in the presence of accused, if in attendance, or of his pleader if he appears by pleader, and shall if necessary be corrected। तो जब कभी भी कोई विटनेस अपना एविडेंस देगा तो एविडेंस उसका कंप्लीट होने के बाद कोर्ट में उसके अक्यूज्ड के प्रेजेंसी में उस विटनेस का जो भी रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस है वो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, है ना। अक्यूज्ड के प्रेजेंसी में पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर अक्यूज्ड नहीं है तो अक्यूज्ड के एडवोकेट के प्रेजेंसी में वो जो विटनेस को उसका रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस पढ़कर सुनाया जाएगा। और अगर विटनेस चाहता है कि इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए तो वो करेक्शन भी किए जाएंगे। Then, if the witness denies the correctness of any part of the evidence when the same is read over to him, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness, and shall add such remarks as he thinks necessary। So, suppose if the witness denies the correctness of any part of the evidence, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर विटनेस कोई करेक्शन सजेस्ट करता है तो उस हिसाब से करेक्शन हो जाएंगे, नेसेसरी चेंजेस हो जाएंगे और वैसा मेमोरेंडम उस पर लिखा जाएगा। और अगर वो कोई करेक्शन नहीं चाहता है तो उसी हिसाब से उसका एविडेंस रिकॉर्ड रहेगा। Then, if the record of the evidence is in a language different from that in which it has been given, and the witness does not understand that language, so the record of evidence, जब evidence record किया गया तो वो कौन से लैंग्वेज में किया गया? डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज बीन गिवन, कि जो लैंग्वेज में उसने दिया था। फॉर एग्जांपल एक तेलुगु पर्सन है, महाराष्ट्र के कोर्ट में आकर उसने तेलुगु में एविडेंस दिया लेकिन उसका ट्रांसलेट किया गया मराठी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मराठी तो उस पर्सन को समझेगी नहीं जब उसको पढ़कर सुनाएंगे। सो द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रिटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वाज गिवन, तो उसको तेलुगु में ही इंटरप्रीट कर बताना पड़ेगा, तेलुगु में ही उसको पढ़कर बताना पड़ेगा, इंटरप्रीट करके बताना पड़ेगा, और इन द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, तो जो लैंग्वेज उसको समझती है वो लैंग्वेज में उसको पढ़कर बताना पड़ेगा, इंटरप्रीट कर बताना पड़ेगा। Section 279, interpretation of evidence to accused or his pleader. So whenever any evidence is given in language and not understood by the accused and he is present in the court in person, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him। So अगर for example कोई witness evidence देता है, कौन से, if the evidence is given in language not understood by the accused, तो एविडेंस ऐसे लैंग्वेज में देता है कोई विटनेस कि जो लैंग्वेज अक्यूज्ड को समझ में नहीं आ रही है
और एंड ही इज प्रेजेंट इन अ कोर्ट इन पर्सन, और अक्यूज्ड अगर कोर्ट में प्रेजेंट है और कोई विटनेस ने जो एविडेंस दिया ऐसे लैंग्वेज में दिया जो लैंग्वेज अक्यूज्ड को समझ में नहीं आ रही है, तो ओपन कोर्ट में अक्यूज्ड को इंटरप्रीट करके बताया जाएगा जो लैंग्वेज अक्यूज समझता है उस लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल तेलुगु में एविडेंस चल रहा है, अक्यूज को मराठी समझती है, तो तेलुगु का एविडेंस मराठी में इंटरप्रीट करके ओपन कोर्ट में अक्यूज को इंटरप्रीट किया जाएगा, अक्यूज को समझाया जाएगा। इफ द ही अपीयर्स बाय प्लीडर एंड द एविडेंस इज गिवन इन अ लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड नॉट अंडरस्टूड बाय द प्लीडर, इट शैल बी इंटरप्रीटेड टू सच प्लीडर इन दैट लैंग्वेज। और अगर अक्यूज नहीं है फॉर एग्जांपल, और अक्यूज के एडवोकेट की प्रेजेंसी में अगर एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है और एविडेंस ऐसे लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जा रहा है जो वो एडवोकेट को नहीं समझ रही है ना, तो एडवोकेट को जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में वो एविडेंस का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। देन व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर पुट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल प्रूफ, इट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रीट एज मच देयरऑफ एज अपीयर्स नेसेसरी। तो अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं प्रूफ के लिए, तो इट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा टू इंटरप्रीट एज मच देयरऑफ एज अपीयर नेसेसरी। कोर्ट को जितना लगता है इंटरप्रीट करना है उतना कोर्ट इंटरप्रीट करेगा उस डॉक्यूमेंट को। देन प्रोबेबल क्वेश्चन 279 पे, when interpretation of evidence to accused or his pleader is required under section 279 of criminal procedure code 1973, whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, when evidence is taken in the absence of accused, both of the above, none of the above। तो अगर हम देखें तो यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि नॉट अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड, सो ऑप्शन 1A इज अ करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 280 remarks respecting demeanor of witness. So when a presiding judge or magistrate has recorded the evidence of a witness, he shall also record such remarks, if any, as he thinks material respecting the demeanor of such witness whilst under examination। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज किसी विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो मैजिस्ट्रेट या वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिमार्क्स भी देगा। किससे रिस्पेक्टिंग द डिमीनर, मतलब उसका बर्ताव कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा है विटनेस का, उसका वर्तणूक कैसी है उस विटनेस की, ये भी मेंशन करेगा जब उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 280 में सेक्शन 281 डील्स विद रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड। सो व्हेनेवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जब कभी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर फॉर एग्जाम्पल अक्यूज्ड को एग्जामाइन कर रहा है तो उसका मेमोरेंडम रिकॉर्ड करेगा, और उस मेमोरेंडम पे, और मेमोरेंडम कौन से लैंग्वेज में करेगा, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें अक्यूज्ड का एविडेंस या उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करेगा, एंड उस पे उस मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होगी और वो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। Whenever the accused is examined by any magistrate other than a metropolitan magistrate or by a court of session, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate। तो अगर मैजिस्ट्रेट, अगर फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा अगर कोई मैजिस्ट्रेट अक्यूज को एग्जामाइन कर रहा है, तो उसका सारा एग्जामिनेशन, क्वेश्चन प्लस आंसर, हर एक चीज रिकॉर्ड की जाएगी और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करेगा और मैजिस्ट्रेट उसकी सिग्नेचर करेगा। और वेयर इज अनेबल टू डू सो ओइंग टू अ फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी अंडर हिज डिस्क्रेशन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन हिज बिहाफ। तो अगर वो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है वो मेमोरेंडम, तो उसके सुपरविजन में, उसके सुपरिटेंडेंस में कोई दूसरा ऑफिसर वो अपॉइंट करेगा और वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करेगा। सेक्शन 281 subclause 3 deals with the record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined, or if that is not practicable, in the language of the court। तो practicable क्या है कि जिस लैंग्वेज में accused को एग्जामाइन किया गया है उसी लैंग्वेज में उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाए।
अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कोर्ट के लैंग्वेज में किया जाएगा। द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रीड ओवर टू द अक्यूज्ड, जो रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाएगा वो अक्यूज्ड को पढ़कर और उसे बताया भी जाएगा। इफ इट डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन, अगर अक्यूज्ड कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है अगर वो लैंग्वेज समझ नहीं रहा है, शैल बी इंटरप्रिटेड टू हिम इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड, तो अक्यूज्ड जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में उसको इंटरप्रीट कर कर बताया जाएगा। एंड ही शैल बी एट लिबर्टी टू एक्सप्लेन और ऐड हिज आंसर, तो अक्यूज्ड को जब पढ़कर सुनाया जाएगा तो अक्यूज्ड उसमें कुछ आंसर उसके ऐड भी कर सकता है, अक्यूज्ड की लिबर्टी है। इट शैल देयरआफ्टर बी साइंड बाय द अक्यूज्ड एंड बाय द मैजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग जज हु शैल सर्टिफाई अंडर हिज ओन हैंड that the examination was taken in his presence and hearing and that the record contains a full and true account of the statement made by the accused। तो सारी चीजें होने के बाद अक्यूज की सिग्नेचर होगी उस मेमोरेंडम पर और वो मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर होंगी जिसने वो रिकॉर्ड किया और उस पर सर्टिफिकेट मैजिस्ट्रेट देगा कि हाँ इस रिकॉर्ड को मैंने ही रिकॉर्ड किया है। Like that, nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of an accused person in the course of a summary trial। तो nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of an accused person in the course of summary trial। तो summary trial में जो accused का examination होता है वो और ये चीजें different होगी। Now section 282 deals with interpreter to be bound to interpret truthfully। So when the service of an interpreter are required by any criminal court for the interpretation of any evidence or statement, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement। जब कभी भी किसी इंटरप्रेटर को बुलाया जाएगा किसी एविडेंस को इंटरप्रेट करने के लिए, तो उस इंटरप्रेटर की ड्यूटी रहेगी, वो बाउंड रहेगा कि वो जो भी इंटरप्रेट करे वो करेक्टली इंटरप्रेट करे, प्रॉपरली इंटरप्रेट करे। That is the duty of that particular interpreter। Section 283 record in High Court। Every High Court may by general rule prescribe the manner in which the evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it, and such evidence and examination shall be taken down in accordance with such rule। तो every High Court, हर हाई कोर्ट एक जनरल रूल प्रिस्क्राइब करेगा, प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज शैल बी टेकन डाउन। तो एक जनरल रूल के तहत हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि किस मैनर में विटनेस का एग्जामिनेशन होना चाहिए या अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होना चाहिए, एंड सच एविडेंस एंड एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच रूल। और हाईकोर्ट के सामने जो भी एविडेंस या जो भी एग्जामिनेशन होगा वो इस तरीके से ही होगा। So these are the particular provision which we have discussed। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।